the chapter chemical bonding. So chemical bonding chemistry में very important chapter है, especially inorganic में it is the base for all chapters. Starting will start with chemical reactivity. Chemical reactivity का मतलब क्या है? It is the ability of an atom to react with another substance chemical. That is nothing but chemical reactivity. ठीक है? और हम बात करेंगे metals और non-metals की reactivity के बारे में. If I write across a pyramid, if I write sodium, magnesium, aluminium. If you see the left side of the periodic table, there are metals, and right side there are all non-metals. As you go from left to right, your metallic character decreases. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. मतलब द प्रॉपर्टी और द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड्स इज डिक्रीजिंग. मेटालिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग, मतलब टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड्स. Why do metals not form strong oxides? As they go from left to right, if you take sodium metal Na2O, हाँ. this is very basic, strong base. हाँ. This is slightly basic. हाँ. This is amphoteric. But I'm acidic. not telling you will not form strong bases, हाँ. but I'm telling as you go away, metallic character is reduced. While sodium forms strong base, right? Mg2 is a slightly mild base. Al2O3 is amphoteric. Okay. Reactivity decrease. Reactivity is decreasing. You can also मतलब ये भी पता होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है. हाँ. तो यू कैन से फ्रॉम योर नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Indirectly. हाँ. और इसका मतलब यही है कि अगर पीरियड में घट रहा है तो इन ग्रुप इट विल इंक्रीज. मेटालिक कैरेक्टर Non हाँ metallic. हाँ metallic character. सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम इज नॉट देयर. कैल्शियम हाँ. इज अ रेडियोएक्टिव. हाँ. टॉप टू बॉटम द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. यानी कि ऐसे आएगा मेटालिक कैरेक्टर. इट मींस नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज Decreasing. हाँ. तो बेसिक है ना कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर. हाँ. अभी इसके बाद जनरली जनरली मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स फॉर्म Acidic oxide. तो बेसिक और एसिडिक के अलावा देयर इज आल्सो न्यूट्रल ऑक्साइड्स. Neutral oxide. न्यूट्रल ऑक्साइड्स मतलब दे नाइदर रिएक्ट विद बेस नॉर विद Not with एसिड. acids. ठीक है. एग्जांपल्स NO, N2O, CO. N2O क्या है? Nothing else. Laughing gas. Ha 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 ha. ठीक है. तो ये तीन न्यूट्रल ऑक्साइड्स. देयर आर सम मोर बट नथिंग टू रिमेंबर फॉर नाउ. Then there are amphoteric oxides. Amphoteric oxides are those oxides which will also form base, which will react with bases also as well as acid. Amphoteric oxides these 6 elements will always form amphoteric oxides. ZnO if I react with an acid C, sorry, Zn if I react with acid, it will form ZnCl. Zinc chloride. If I react Zn with NaOH, it will form Sodium zincate, right? Na2ZnO2, no? नहीं. एक Na और Zn में से एक में 2 नहीं आता. हिंदी में बड़ा था भी यार. हाँ. Na2Zn. Oh my God. Start. Zn, we are reacting with acid. It will form zinc chloride plus hydrogen gas. Zn, we are reacting with base, sodium zincate plus hydrogen gas. Similarly, beryllium, aluminum, gallium, ये सारे metals भी है
all these metals will form amphoteric oxides. Always, no exception. Only in this case no exception. अभी एक और है एसिडिक AS. इसके दो ऑक्साइड्स में होंगी. One is AS2O3. One is AS2O5. AS2O3 is amphoteric in nature, while AS2O5 is acidic in nature. Acidic. ठीक है, amphoteric. AS2O3 is amphoteric, AS2O5 is acidic. तो कुछ ऐसे जैसे arsenic, chromium, vanadium के कुछ oxides. क्रोमियम मेटल है ना? Cr2O7. No, I'm telling which will form amphoteric. General. हाँ, general. There are also मतलब some metals and non-metals, but these are the 6 elements which will always form amphoteric oxides. ठीक है? Zinc, beryllium, aluminium. तो इसका एक mnemonics भी है. जनाबे अली दाए संत प्रभु. ठीक है? जनाब अली दाए संत प्रभु. जनाबे अली दाए संत प्रभु. तो you need to by heart. Also एक और मतलब exception है B2O5 और Cr2O3. हाँ, these are also amphoteric oxides. Always. Always. मतलब chromium का this oxide is amphoteric. Only this. Vanadium का this oxide is amphoteric. ठीक है, अब एक सवाल करेंगे 2017 का. हाँ, कॉपी राउंड. फिर अभी इधर हमारे पास What should we find? Question. तो ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट है. हाँ, मल्टीपल. The question is you need to choose the right order which has all amphoteric. All amphoteric. All amphoteric. Not even a single. मतलब all four. मल्टीपल चॉइस है ऑप्शन ए बी सी डी. जल्दी बोलो. मल्टीपल चॉइस करेक्ट है. You need to tell the correct option which has all amphoteric oxides. क्लियरली ये तो नहीं होगा. नहीं होगा. नहीं. ऑक्साइड और इसमें ये नहीं होगा. COD. क्रोमियम का सिर्फ दिस ऑक्साइड में दिस इज एम्फोटेरिक. बेरिलियम का आई टोल्ड ऑलवेज एम्फोटेरिक. एसएन का ऑलवेज एम्फोटेरिक. तो ये तो करेक्ट है. Zn हाँ. एल्यूमिनियम वो भी होगा. तो दिस वाज द राइट आंसर. सबको मिला हुआ. हाँ. अभी केमिकल रिएक्टिविटी में इतना पढ़ना था हमें. नेक्स्ट विल स्टार्ट अबाउट केमिकल बॉन्डिंग. क्या मतलब है केमिकल बॉन्डिंग का? Force of attraction between constituent atoms. दिमाग लगा रहे हैं. केमिकल्स के बीच Bonding. केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है? हाँ, अच्छा. एग्जाम में ये लिख लेना. JEE में. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स. ठीक है? There are how many types of bonds? Three. Three हमें पता है. हाँ, जो हमें पता है. Covalent bond, ionic bond, Coordinate bond. I'll tell you briefly. Covalent bond मतलब the bond which is formed by equal sharing of electrons. Ionic bond by Transferring of electrons. Coordinate bond unequal sharing. हाँ. अभी जनरली कोऑर्डिनेट और आयोनिक में इंटीग्रेट कंफ्यूज. कोऑर्डिनेट में कैसा हो रहा है? सपोज ये ऐसा है. दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इधर क्या हो रहा है? देयर इज अनइक्वल शेयरिंग बट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन it is with nitrogen also with oxygen also. But if you take NaCl, here sodium is completely losing an electron. ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है. लेकिन इधर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के साथ. दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड आयोनिक. ठीक है. अभी इसके बाद हाँ देन फिर बहुत सारे महान लोग आए जिन्होंने थेरीज दी, जिनके हाँ हमेशा की तरह कुछ एक्सेप्शंस थे. फिर दूसरे आए. पहले भी लर्न अबाउट लेविस, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन बैलेंस थ्योरी. इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी.
तो इन्होंने बताया कि फॉर एग्जांपल हम जो भी ऐसे डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, you can represent the valence electron of an atom through a dot. Here what we are representing are valence electrons, not valence. हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एक। लिथियम के पास एक। ऑक्सीजन के पास हाँ 6। इसका यूज क्या था कि you could tell the number of valence electrons present in the atom and also you could tell कि वो कौन से ग्रुप का हो belong, S block, P block, ठीक है। फिर इसमें कुछ एक्सेप्शन और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट दिया ऑक्टेट रूल। The octet rule states that an atom whose octet is not complete, it will complete its octet by either transferring electrons, gaining electrons or sharing electrons, ठीक है। और इसमें उसने हीलियम मतलब नोबल गैसेस जो है उसको ये रीज़न देके जस्टिफाई किया कि उनका ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट है, ऑक्टेट एंड डुप्लेट हीलियम के केस में, ठीक है। तो एक्सेप्शंस ये थे कि देयर वर expanded octets also, मतलब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, also there were odd electron species, ठीक है, and then there were species which had मतलब less number of electrons than 8, ठीक है, these were the exceptions, right? इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, सॉल्युबिलिटी वगैरह। Ionic compounds will form ionic bond obviously. Electrovalency. Electrovalency क्या होता है? Number of electrons lost or gained to form an ion. To form an ionic bond, ठीक है। अभी electrovalency हुआ whenever there is formation of bond, energy is released or energy is absorbed. Released. So you can say that the energy released must be always greater than the energy we are supplying, then only the bond will form. Yes. Okay, that is the condition for stable bond. Also there are conditions to form ionic bond, जैसे कि जो electronegativity है वो ज़्यादा होना चाहिए। डिफरेंस। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए एंड हाँ इतने एक्सेप्शंस। ऑल्सो इफ आई टेक फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, एक एक्स इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स मेटल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, हाँ इसमें there is ionization. This is an endothermic process. We are supplying energy, and an electron is gaining, मतलब an atom is gaining electron. That time it is electron affinity. This is an exothermic process. तो कंडीशन यही था कि जो एनर्जी रिलीज है बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर, जो एनर्जी रिलीज है बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर, that must be always greater than the energy supplied by us. Then only there will be formation of bond. चल तो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट गिवन बाय मतलब पीपीटी थ्योरी के बारे में, उसमें हम नहीं जाएंगे, विल लर्न अबाउट ओवरलैपिंग, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट। आई डिड, हाँ कर। तो वन मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विल लर्न पीपीटी थ्योरी के अंदर, ओवरलैपिंग। There are two types of overlapping. One is along the axis, perpendicular to the axis. इसको हम head to head कहते हैं. This is side. अभी देखो. पहली बात तो what is overlapping? एक के ऊपर एक। इंटरमिक्सिंग। हाँ Intermixing of atomic orbitals, not atoms, atomic orbitals ना. So you can see here ये head to head overlap होता है ऐसे, but if I draw this like this, ये से perpendicular to axis है, so this is sideways overlapping, this is head to head overlapping. फिर इसमें भी then we learn subtypes, that is positive overlapping, negative overlapping, zero overlapping, ठीक है।
पॉजिटिव ओवरलैपिंग मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं उनका साइन सेम है, वो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ फेस सेम, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। इफ आई से स्पेरिकल मतलब दिस ऑलवेज विल बी, हाँ ठीक है, या तो पॉजिटिव हो पॉजिटिव पॉजिटिव, या से नेगेटिव नेगेटिव, या फिर अगर हम पी ऑर्बिटल्स में से मैच करें तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो देयर इज इंटरमिक्सिंग ऑफ द सेम फेजेस, देन वी कॉल इट एज पॉजिटिव ओवरलैपिंग, देन ओनली द बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, ठीक है। नेगेटिव ओवरलैपिंग में एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या फिर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। जीरो ओवरलैपिंग यानी कि the both the positive and negative are taking place and they are cancelling each other. If I take an example of इनको pause करो। Zero overlapping मतलब as I told there is positive also negative overlapping taking place which they cancel each other out. If I take S and P, S P orbital में एस के पास हमेशा मतलब इट इज नॉन डायरेक्शनल, एक ही होगा फेस, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव, अगर मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया तो ये नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा, इधर नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा, देन कैंसल आउट ईच अदर, तो जीरो। तो ओवरलैपिंग इज टेकिंग प्लेस अलोंग एन एक्सिस which is known as internuclear axis. Generally we take Z as internuclear axis. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि इन्हीं केसेस में how will the bond formation take place and what bond will form. Go. Then again we are differentiating overlapping on the basis of the lobes, मतलब number of lobes. One lobe overlapping. 3 भी होता है नहीं, क्योंकि किसी ऑर्बिटल के पास तीन ऑर्बिटल, 4 हाँ 4 नो 1 मतलब एक Five. लोब इंटरैक्ट कर रहा है, Five. here 2 lobes are interacting, Wow. here only Ah. case of D, Ah, 4 lobes D, are D. interacting. When there is interaction of one lobe, the bond from this अल्फा, सॉरी सिग्मा, वो सही था। हाँ अल्फा बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं होता, सिग्मा, then pi, पाई, डेल्टा very good. आता है मेरे को। Very good, Ritesh. ठीक है, तो we'll see the cases, पहले SS overlapping, यानी कि SS ऑर्बिटल का overlapping हो रहा है ऐसे, ये कौन सा मतलब how many lobes are interacting here? मतलब एक एक सब दोनों का। तो which bond will it form? सिग्मा, Sigma bond, ठीक है। Z as S is मतलब non directional, तो उनकी double लिख सकते हैं। Then second is PP overlapping. हाँ PP overlapping, अगर if I take this internuclear axis as Z हाँ and I am suppose this is Y, हाँ, how many lobes are interacting? 2 2 2 कौन सा bond बनेगा? पाई, अभी इसमें एक और केस, ये Z है, ये Y है और ये X। Is there any overlapping? जीरो। Zero है। हाँ Will the bond formation? नो। नहीं, तो नहीं होता ना। फिर then there is again SP overlapping. Mentioning of internuclear axis is very important. And if they say कि क्वेश्चन में internuclear axis is Z, तो एक को तुम ऐसे लोगे, एक को तुम ऐसे लोगे, ठीक है? SP का यानी कि एक लोब ऑफ S this is PZ. Z. How many lobes are in? 1 1 तो कौन सा होगा ये? सिग्मा, सिग्मा। और अगर यही मैं ये Z लूँ and then if I take like this, जीरो, zero overlapping bond formation No. नहीं होगा, ठीक है? या फिर even if I take like Y ऐसे, हाँ। तभी नहीं होगा। तो SP में you have to take the same p orbital
यानी कि which is of the internuclear axis. Axis, okay. तो ये थे overlapping. Last type of मतलब F भी होता है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है. इतना ही पढ़ लो बहुत important है. ठीक है. E orbital में totally how many types of orbitals are there? 5 मतलब Types two. उसमें सब करके total 5. तो पहले में ये ऑर्बिटल कैसा होता है? शेप कैसा होता है? हाँ मतलब डबल डम्बेल. हाँ ओके हाँ मोस्टली डबल डम्बेल. तो if I say dx square minus y square axial होगा यानी कि x और y के अलग होगा. एक लोग मतलब हाँ. अगर हम दो dx square minus y square ओवरलैप करवाए along x और y का तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा along x और y. वही तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेल्टा. dx square minus y square along z. तो ऐसे यानी कि तुम ऐसे समझो इट इज समथिंग शेप लाइक दिस. ऐसे चारों के चारों लोग इंटरैक्ट करें ऐसे 3D में देखो. तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डेल्टा. ये फर्स्ट केस हुआ. तो ये x square minus y square minus z square. If you pass along the same axis as present in x, then form sigma bond. इन दोनों को छोड़ के if you take other axis as internuclear axis, then form delta. Clear? अभी एक और आएगा. dxy plus dx. हाँ? बोला था ना तेरा नाम. अबे यार जल्दी. गो. एक और dxy ठीक है. Is this axial or non-axial? dxy axial है कि non-axial? नॉन एक्सियल. अभी अगर ये y है और x और y के बीच में होगा यानी कि हम इसको ओवरलैप कर रहा है. तो ये कितने लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं? 2. तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई. अभी एक और बहुत ही ज्यादा मतलब z स्क्वायर. अगर हमने z एक्सिस के थ्रू पास इस z स्क्वायर का स्ट्रक्चर कैसे होता है? z स्क्वायर मतलब एक रिंग आता है. हाँ. अगर मैं इसको इंटरनेट एक्सिस लूं तो z स्क्वायर कुछ ऐसा होगा. हाँ. एक रिंग आएगा बीच में. हाँ मैं इसको इसके साथ इंटरैक्ट करवा रहा है. बॉन्ड फॉर्मेशन होगा सिग्मा बॉन्ड. अगर मैं इन्हीं को x या फिर y में हाँ. तो इट्स लाइक टू लोब्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर. पर ये जो रिंग है इट नेवर अलाउड टू फॉर्म अ बॉन्ड. ये राइट करेगा. तो इफ यू पास these and square along x or y there will be no bond formation due to structure. जो रिंग आ रहा है ना बीच में इसके कारण. अभी कुछ डाउट है तो पूछो. डाउट्स कोई है? कोई शक? इधर बॉन्ड नहीं बनेगा. इधर बॉन्ड नहीं बनेगा. वो रिपेल करेंगे. x और y z को ही तुम z के अलावा में जोड़े तो सिग्मा बनेगा. इसमें x और इसमें इधर देखो x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर
स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर along x और y सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा लेकिन उन दोनों को छोड़ के अदर एक्सिस इज टेकन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डेल्टा। If there was y and z तो अगर हम x लेते तो डेल्टा बॉन्ड इधर y और इधर z है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z या फिर y तो तब सिग्मा। ठीक है, p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग मतलब काफी ज्यादा ही और जब भी बॉन्ड बनता है सपोज इफ आई से नाइट्रोजन पहला वाला सिग्मा बॉन्ड होगा दूसरा पाई 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 नहीं पाई ही होगा फोर्थ रहा तो डेल्टा एक सिग्मा 2 पाई 1 डेल्टा the strongest among all bonds is सिग्मा So if I talk about the strength of bond, sigma पहले आएगा, फिर delta आएगा, फिर pi आएगा. This order is very important. जब भी हम bonds वगैरह पढ़ते हैं, तो you need to remember. अभी देखो, ये सब तो ठीक है आसान के साथ. जब bond भी same हो जाए, मतलब sigma bond भी बन रहा है, overlapping same हो रहा है, but they are telling us to compare which bond is stronger. So you overlapping is always यानी कि नथिंग बट डिस्टेंस यू कैन से डिस्टेंस अगर एक ऐसे है और एक ऐसा बन रहा है दोनों सिग्मा बन रहे हैं प्रोपोर्शनल टू साइज तो और भी बहुत ज़्यादा कुछ है लेकिन अभी टाइम नहीं है तो इट्स लाइक टू वाइंड अप आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग यस कोई डाउट पूछ सकते हो अल्फा बॉन्ड अगर रितेश डिस्कवर करेगा तो फिर बन सकता है हाँ ज़रूर करूँगा